Hi, good morning, Morning, everyone. Priya. Good morning. Hello, sir. How are you? Fine, fine. Morning. Good morning. Good morning. Hello, Good everyone. morning, Priya. Priya Nehra this side. Good morning, ma'am. So, Yes, yeah, I just suppose that we have all gathered here for the study today. And I, Priya Nehra, welcome you all from the behalf of our Honorable Deepthi ma'am. So, I'm sure she'll be here tomorrow to take the class. Maybe she'll join in sometimes later today itself. But let's begin the session today. So we'll be studying about two books here for the new participants, of course. We'll be studying about the book written by Rhonda Byrne, namely The Magic. And the second book that we read is The Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. So we'll start with the first book, Pehle To. And before that, as that chapter is about the money, we have got our mind conditioned for some negative feelings about money. We all have some limitations in our mind. So in order to clear those limitations now, like as today Sunday also, we can carry on a what do you call affirmation session for that. Affirmation meditation कर लेते हैं पहले थोड़ा सा money के लिए ही. Like all those affirmations are for money only. ठीक है? So we'll start with the affirmations पहले, and later we'll open the book and we'll share the book's explanation and all. So shall we begin with the affirmation then? So yeah, आपने जैसे उस दिन रीना ने बताया था, it was very helpful for all of us कि हाँ, we have to we have to be in a receiving mode पहले तो, we have to take deep breaths and all. या रीना ने जैसे कहा था, हम लोग आराम से बैठकर, सीधा बैठकर हम लोग ये affirmations करें. तो I just suppose कि हम लोगों को वो सब चीजें उस दिन रीना ने बताई थी वो याद है. तो yeah, so let's begin with the affirmation meditation. So the first and foremost thing is, I'm starting, I love money and money loves me. I am worthy of the wealth I desire. I am financially free. I am grateful for the money I have. Wealth and abundance flow to me. I am open to receiving money. Money comes to me in expected and unexpected ways. I am a money magnet. I am an excellent money manager. I am worthy of financial success. I spent money only on things I love. Everything I touch turns into gold. I am a great giver and an excellent receiver. Money is drawn to me. I am generous with my money. I release all blocks and allow wealth to flow in. I'm able to handle large sums of money. I believe that there is enough money
for everyone. Money creates a positive impact on my life. I am at peace with having a lot of money. I get rich by doing what I love. I release all resistance to attract money. I'm grateful that I can contribute my money to the economy. I embrace new avenues of income. The more I give, the more I receive. Here we go. Thank you so much, everyone. I just suppose that we all enjoyed the affirmation. Yes, ma'am. Yes. Thank you, Priya. Yeah, it was wonderful. Yes, बहुत it's अच्छे से great. कराया. Thank you so much. So we have Poonam here. Poonam का birthday भी है आज. Happy birthday, Poonam. Lots and Thank lots you of blessings. so much. Thank you. Thank Happy you so much. birthday. Stay blessed Happy always. birthday, Thank you, Poonam. everyone. Thank you. So, yeah, we'll get Hey, get the Poonam, study first. उसके बाद we'll talk Thank you so about much, the Jiji. thing and we'll celebrate your birthday, Poonam. Sure. Okay. I'm ready for that. Yeah. So yeah, Meetu ma'am will be reading today. Yes, Meetu ma'am. Yeah, hello, good morning. Good morning, Day ma'am. 17, the magic check. So the chapter we'll be studying today is the magic check. This is the third chapter about the money in this particular book. So we have all studied about the thing that how we beautifully we gave thank you for the money that we already had that was spent on us. बचपन से लेके अब तक जो मनी हमारे ऊपर खर्चा हुआ है हमारे पेरेंट्स का उन्होंने स्पेंड किया है पेरेंट्स ने कभी हस्बैंड ने या फिर हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं फ्रेंड्स ने तो उन सब के लिए हमने थैंक यू कर लिया है सेकंड मनी मैग्नेट चैप्टर था उसमें हमने क्या किया उसमें हमारे जितने भी बिल्स हैं चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो हमने उन सब बिल्स को थैंक यू बोल दिया So now is the time to create money for ourselves. This money is going to be created by ourselves for the things that we have utter desire for. जिस चीज के लिए जिन चीजों के लिए हमारे मन में बहुत ज्यादा डिजायर होता है लेकिन हम लोगों को लगता है कि I do not have the money right now for that particular thing. So for that हम लोग ये वाला प्रैक्टिस करते हैं द मैजिक चेक इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली रोंडा बर्न ने इस चैप्टर को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है द फर्स्ट पार्ट बीइंग कि हमारे मन में जो मेंटल ब्लॉक्स होते हैं ना बिकॉज मनी इज नथिंग बट एन एनर्जी और हम लोग भी एनर्जी का भंडार है तो लेकिन हमारे माइंड के अंदर जो मेंटल ब्लॉक्स होते हैं अबाउट द मनी जो कि हम लोगों ने काफी कुछ ना एफर्मेशन में भी इंक्लूड किया अगर आप उस एफर्मेशन का अगर एक भी याद हो ना आपको अगर हम उसको ऑपोजिट कर दें तो वो पर्टिकुलर मेंटल ब्लॉक हमारे मन में होता है सो इसमें रोंडाबन बताएंगी कि हम लोगों को मनी अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एज मच एज वी वांट हमें उन मेंटल ब्लॉक्स को हमारे माइंड में से रिमूव करना पड़ेगा देन ओनली we will be in the receiving mode to welcome more money into our life. तो इस तरह से विल कैरी ऑन विद द चैप्टर और इसमें दिखाई दे रहा है कि एक टेबल है टेबल के ऊपर एक चेक रखा हुआ है और उस चेक में द यूनिवर्स की तरफ से वो जो वहां पर है ना जो पेई है वो द यूनिवर्स है तो उनके तरफ से हमारे लिए ये चेक बनेगा हम आज बनाएंगे अपने हाथों से बनाएंगे और उस चेक को हम लोग अपने लाइफ में
बहुत जल्दी रियलाइज होते हुए भी देखेंगे। अगर हमारे चेक बहुत जल्दी रियलाइज हो जाते हैं, होंगे ही, मतलब फॉर दैट वी नीड टू क्लियर आवर माइंड विद द मेंटल ब्लॉक्स। ऑफ कोर्स वी नीड टू बी ऑन द पॉजिटिव जोन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द डे, है ना। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आस्क कर लिया दैट वी हैव आस्क्ड फॉर टू द यूनिवर्स फॉर द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी नीड फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। जस्ट सपोज यू वांट टू बाय एन एलवी बैग, तो आपने उसके लिए अपना मनी लिख दिया, एंड फॉर वन थिंग यू हैव टू डू, आपके मन में अगर आपके लिस्ट में ना 4 चीजें हैं ना, तो वी हैव टू चूज वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसके लिए आपके मन में बहुत ज्यादा डिजायर हो कि आई वांट दिस, ठीक है। उसके लिए, उस एक चीज के लिए वो स्पेसिफिक वही अमाउंट लिखकर हम लोग उसको रखेंगे और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ, जैसे रौंडा बहन बता रही हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ये मनी हमारे लाइफ में किसी भी फॉर्म में आएगा। और उसके लिए ऑब्वियसली हम लोगों को अपने दिमाग के द्वार खोलने पड़ेंगे मनी को रिसीव करने के लिए। उसके लिए तो हमें पता ही है, हमें मेंटल ब्लॉक्स अपने रिमूव करने पड़ेंगे और फिर गुड फीलिंग जोन में रखना होगा हमने अपने आप को। या तो फिर ये मैजिक के चारों तरफ जो ये ग्लिटर्स हैं वो मैजिक है, मतलब ये चेक जो है ये मैजिकल चेक है। और ये जो ग्लिटर्स है ना, ये इसीलिए है कि बाय मैजिक we will be attracting this energy into our life, this energy which is in the form of money. Okay, so yes ma'am, Neetu ma'am. Quote, in the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. Unquote. By William S. Burroughs, writer and poet. When you direct gratitude's magical power towards any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says that like attracts like. So if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing. And gratitude is the guaranteed way for you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. Just a moment ma'am, we'll take a short break here. So यहाँ पर रौंडा बहन ने बता रखा है कि आप मनी के बारे में जैसे विचार रखते हो, मनी या फॉर दैट मैटर आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए या बाकी और भी चीजों के लिए जो हमारे लाइफ में है, आप जैसा सोचोगे, आपके वर्ड्स जैसे होंगे, हमारी लाइफ वैसे ही होती जाएंगी। वो मैम कहती है ना कि वट एवर इज देयर इन योर हेड इट कम्स इनटू योर हैंड। जो आपके शब्द निकलते हैं ना, उन शब्दों को हम लोगों को आज बहुत ज्यादा वॉच करना पड़ेगा। एंड खाली शब्द ही नहीं, शब्द तो मुंह से निकल गए, हमारे कानों को सुनाई पड़े, हमने सुन लिया, लेकिन जो हमारे थॉट्स भी है ना, our words and thoughts, they are going to be our reality. So we have to be very, very watchful while using words
about money and about all the other things in our life, right? So हम लोग जैसे बचपन से हम लोग ये सुनते आए हैं कि अगर आप मनी के बारे में आप सोचते हो तो आप वो गलत है, पैसे के बारे में सोचते हो तो कई बार हम लोग ना क्रूड लैंग्वेज में बोल देते हैं कि पैसे के बारे में सोचते हैं तो वो खराब लोग होते हैं। या जैसे कि हम लोगों ने बुक भी जब पढ़ा था तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पैसे के बारे में खाली सोचना है तो मतलब इट मेक्स यू मीन, यू नो, हम लोगों को ऐसा लगता है कि इट मेक्स यू मीन। लेकिन आपको पता है वो एक बुक आई थी, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, आई एम श्योर, बहुत ही फेमस बुक है, रिच डैड पुअर डैड। तो उसमें उन्होंने ये बोला हुआ था कि इफ यू आर बोर्न पुअर ना, देन दैट इज नॉट योर फॉल्ट। हम लोग किसी भी फैमिली में पैदा हो सकते हैं, दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स, राइट? वो तो भगवान के ऊपर है, यूनिवर्स के ऊपर है, हमें किस फैमिली में डालता है वो। बट इफ यू डाई पुअर देन दैट्स योर फॉल्ट। मतलब you haven't got enough thought to the fact that how can you get most of it, right? So इस तरह से रॉन्डा बर्न बता रही हैं कि अगर आप मनी के लिए ग्रेटफुल होते हो तो हमारे पास तो वो चाबी मैम ने बता ही रखी है ना कि ग्रेटफुल होना। सो हर ताले की एक ही चाबी, वो है ग्रेटिट्यूड। सो अगर आप मनी के लिए ग्रेटफुल होते हो या हमारे पास जो भी मोनेटरी चीजें हैं जो कि मनी के एक्सचेंज में हमें मिली है, उन सभी चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो मनी हमारे पास पूरे अबंडेंस में आएगी। और अदरवाइज अगर हम मनी को के लिए डेरोगेटरी स्टेटमेंट यूज करते हैं कि पैसा तो खराब होता है, पैसा तो बुद्धि बिगाड़ देता है, पैसा आते ही उसके तेवर बदल गए टाइप, ये सब चीजों को हम लोगों ने अगर बोलेंगे तो हमें ये वॉच करना पड़ेगा कि अगेन हम अपने ड्रीम्स से दूर होते जाएंगे, हम अपने ड्रीम्स के नजदीक जाकर भी वापस हमें वो वहां से एक पुश मिलेगा, एक धक्का मिलेगा जो कि हमें बिलो द लाइन गिरा के हम लोगों को मतलब ड्रीम से दूर कर देगा। सो वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल फॉर दैट। क्योंकि इतने सालों से मतलब जो कंडीशनिंग होती है ना, ब्रेन की कंडीशनिंग का मतलब होता है कि जस्ट सपोज आपने किसी एक चीज पर एक इतने जोर जोर से जो लिख दिया है ना, मतलब आपने बार बार उसी बात को सुन सुन के मेंटली, जो हम लोगों को बोला जाता है, कई बार हमने सुना है ना, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, या पैसा खराब चीज है, या मतलब पैसों की भूख होती है, रोटी कपड़ा और मकान इतना ही बहुत है, इसके बियॉन्ड नहीं सोचना चाहिए हम लोगों को, वो खराब है या नहीं। वो सब चीजें जो है ना वो हमारे दिमाग को लिमिट करती हैं, हमें फ्लाई नहीं करने देगी वो। अगर पैसा इतना ही खराब होता तो फिर हम लोग जब जाते हैं कहीं पर, हम लोग कोई इंपॉर्टेंट चीज खरीदने जाते हैं, हमारी जान बचाने के लिए भी डॉक्टर्स वहां पर पैसा ही चार्ज करते हैं, राइट? कि खाली प्यार से बोलकर या बाकी और चीजों के एक्सचेंज में नहीं मिल सकता वो। तो मनी इज एन एनर्जी, और हम लोगों को अगर उसके लिए नेगेटिव थॉट्स कोई भी है ना तो वो कंडीशनिंग कर देती है ब्रेन की उसी तरीके से। आज हमने क्या करना है, जो पुरानी कंडीशनिंग हमारी हो रखी है या जो भी लिमिटिंग फैक्ट्स है, जो नेगेटिव थॉट्स एंड बिलीव्स है हमारे मनी को लेके, उनको हमने रिमूव करना है और उसके जगह नए अच्छे थॉट्स को, वो एफर्मेशंस जो हमने आज पढ़ी हैं, उनको हमने उसके ऊपर सुपर इम्पोज करना है, ताकि ये थॉट हमारा डोमिनेंट थॉट बन जाए जो हमने आज सुबह एफर्मेशंस पढ़ी हैं। ठीक है, तो ये रॉन्डा बर्न बता रही है कि अगर आपके मन में किसी और के मनी को लेकर कि उसके पास तो इतना है, भगवान ने तो उसको इतना दे रखा है, मुझे तो कुछ भी नहीं दे रखा भगवान ने, तो आप ऐसे बोलोगे ना तो एक्चुअली ऐसा टाइम आएगा जब आपके पास जो भी है आप हमेशा वो बेयर मिनिमम में ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव एंड यू विल नेवर एवर हैव इनफ मनी टू रेलिश द थिंग दैट यू वांट टू। आपको मान लो आपको लग चाहिए कि आज मुझे ना सुशी खानी है और उस रेस्टोरेंट में खा जाकर खानी है, लेकिन आपके पास हमेशा बेयर मिनिमम ही रहेगा, आप भी किनच किनच करके जाओगे कि क्या है, घर के ही ठीक है और ये सब। बट नहीं, ऐसा करने से ऐसा ही सिचुएशन आएगा, क्योंकि हमने मनी के लिए बचपन से लेके अब तक काफी ज्यादा डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स यूज कर रखे हैं, जिनको हमने रिकंडीशन करना है। हम लोगों ने जो वो चिट बनाई थी ना, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो वो चिट बनाने के बावजूद भी नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती है मनी के लिए हमारे मन में, है ना? आज भी कई बार हम लोगों को मनी के लिए सोचना पड़ता है या हमारे मुंह से निकल जाता है, तो उन सब चीजों को हमने वॉच करना है। तो रॉन्डा बर्न वही बोल रही है ना कि आप एक तरफ से बोलते हो कि आप मनी के लिए ग्रेटफुल हो, लेकिन दूसरी तरफ से आप डेरोगेटरी स्टेटमेंट अगर यूज करते हो या लैक की फीलिंग लाते हो, तब इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। आपको ग्रैटिट्यूड में
और गुड फीलिंग जोन में रहना पड़ेगा टू अट्रैक्ट मनी, क्योंकि मनी की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। अगर हम ग्रैटिट्यूड, लव, सेटिस्फेक्शन, कंटेंट ऐसी फीलिंग्स में रहेंगे ना, तो हम लोग बहुत आसानी से मनी को अपने लाइफ में फ्रॉम ऑल द रेलम्स ना हम लोग रिसीव कर पाएंगे। सो फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन द पॉजिटिव जोन एंड टू वॉच आवर वर्ड्स एंड थॉट्स। ठीक है, तो ये है। उसके बाद ये कि आप जो है, हम लोग कई बार क्या करते हैं ना कि आप जैसे बहुत बड़ा मतलब एक आप लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, जैसे अभी हम लोगों ने ना वो टैक्स पे करने का वो भरने का वो लास्ट डे था, तो हम लोगों ने वो किया। वो एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक होता है हम लोगों के माइंड में, इतना टैक्स दे दिया, इतना टैक्स दे दिया, सरकार लूट रही है हमें, ये वो। लेकिन जब हम लोग वो बात यूज करते हैं, मैंने एक्चुअली बहुत बार सुना है ना ये, तो इसीलिए ये दिमाग में मेरे आया कि हम लोग जस्ट इमेजिन आप हिल्स में गए हो, और हिल्स में हम लोग जो ने जाकर देखा, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, जो हम लोग प्लेन्स में रहते हैं ना, हम वहां पर जाके बहुत मजे करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको पता है वहां के जो बाशिंदे हैं ना, वहां के जो रेजिडेंट्स है ना, उनकी लाइफ बहुत टफ होती है। उनका जो लाइफ है ना, उनकी जो लाइवलीहुड है, उनका जो गुजारा है, वो हम लोग वहां पर जाए, टूरिस्ट वहां पर जाए, मेजरली उस पर डिपेंड करता है। अब जो टूरिस्ट हैं, हम लोग वहां जाएंगे, हम लोग तो तभी जा पाएंगे ना जब वहां पर अच्छे रोड्स होंगे। रोड्स अगर प्रॉपर हो तो ही हम जाके उस जगह का हम आनंद उठा सकते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से इज, व्हेन यू आर पेइंग योर टैक्सेस, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। आपके पैसे से ही वो रोड्स बन रहे हैं। आपका पैसा जो आप कई बार बहुत ही खराब मन से गवर्नमेंट को पे करते हो, आपको लगता है मेरा तो सालाना 6 लाख का टैक्स चला गया, इतना पे करता हूँ, इतना पे करता हूँ। और हम लोग बहुत बार टैक्स को बचाने के लिए जो होते हैं ना, जो भी हम लोग दे रखे होते हैं हम लोगों के, हम टैक्स बचा सकते हैं, जैसे एटीसी वगैरह जो होते हैं, उन सब के जरिए हम लोग यूज करके फिर भी हम इतना नहीं बचा पाते, हम लोगों को सरकार को देना ही पड़ता है। एक नमक के पैकेट खरीदने जाएंगे तो भी हम लोगों को देना पड़ेगा। तो उस टाइम भी अपने मन में ना ये वाली फीलिंग मत लाना कि देना पड़ रहा है, सरकार को देना पड़ रहा है, इतना लूट रही है सरकार, इतना लूट रही है। आप ये सोचो, जो आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो ना, आप लकी हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इनकम इतनी नहीं होती कि वो अपना टैक्स पे करना पड़े उनको, राइट। तो अगर हमें ज्यादा मिल रहा है तो ही हम ज्यादा दे रहे हैं टैक्स, राइट। तो वो टैक्स को सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर रही है। आप NH1 में जाओ, क्या रोड्स पहले थे और क्या रोड्स अब है, मतलब धीरे धीरे करके। आई एम नॉट सेइंग कि अभी 50 साल पहले जो हमारे NH1 की हालत थी और अब देखोगे ना, आपको बहुत ज्यादा चेंजेस लगेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपका जो हार्ड अर्न मनी है ना, वो यहाँ यूज हो रहा है। आपको पता है, हम लोगों को बहुत मजा आता है कि हमारे रोड जो है बिल्कुल बम्प फ्री होने चाहिए, पॉट होल्स नहीं होने चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा? वो हमारे टैक्स वाला जो हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, डिफरेंट टैक्सेस जो पे करते हैं हर एक कैटेगरी के, उससे आता है। जो ये होमलेस होते हैं उनके लिए ठंड में शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं, या जगह जगह पानी वगैरह का बंदोबस्त किया जाता है, ये सब जो चीजें है ना, आप इनडायरेक्टली अगर उन लोगों के लिए नहीं कुछ डायरेक्टली कर पाते हो, तो गवर्नमेंट आपकी तरफ से वो करती है। तो गवर्नमेंट को कर्ज करना हम लोग प्लीज छोड़ दें, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी गवर्नमेंट हो, एनी पॉलिटिकल पार्टी हो, गवर्नमेंट डज दैट फॉर अस, वी हैव चोजन देम। हमारे पास तरीके हैं ना कि किस तरह हम टैक्स को सेव कर सकते हैं, वो तरीके हम लोग अपना लें, उसको उन तरीकों को अपना के फिर हम लोग अपना टैक्स बचा सकते हैं, और अपना अच्छे से हम लोग अपना उसको एनालाइज कर सकते हैं, है ना। लेकिन टैक्स पे करते टाइम डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स यूज करना, लूट लिया, इतना तो कमाया नहीं था, इतना तो ले लेते हैं, ये सब हम लोगों ने ना वॉचफुल होना है थोड़ा सा। हमने सोचना है इस बात को इस तरीके से, हमने कमाया है तभी पे कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं कमाया वो नहीं पे कर पा रहे हैं। तो अगर हमारे पास पैसा आएगा तो ऑब्वियसली हम लोगों को पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली आप ह्यूमैनिटी के लिए पे कर रहे हो, आप इकोनॉमी के लिए पे कर रहे हो, तो वो आप याद रखना। अगर हम लोग स्पेंड करना छोड़ देंगे ना, तो इकोनॉमी नहीं चल सकती किसी भी कंट्री की। आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है कि जब कोई इकोनॉमी जब रिसेशन में आती है तो उसका पता है, मतलब पता कैसे चलता है, जो भी इकोनॉमिस्ट्स होते हैं जो बहुत टॉप लेवल में बैठे होते हैं, देयर इज अ सेइंग कि मेन स्टॉप बाइंग अंडरवेयर्स जब इकोनॉमी कम चल रही होती है, जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है। सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड। आप ये देखो ना, मतलब हमारी छोटा छोटा परचेज किस तरह से इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है।
It's just like that कि we have to create that big mental block from our mind कि हम लोगों का पैसा जो है फालतू में जा रहा है, ऐसा नहीं है. हम लोगों को जुडिशियसली अपने इनकम को यूज करके फिर हम लोगों को वो टैक्स पे करना होगा, राइट? तो इस तरह से है. यस, मैम कहाँ से पढ़ना था, मैं तो भूल ही जाती हूँ. I get so much carried away, you know. Yeah, यहाँ से money can come to you. ये वाला मैम. थोड़ा और नीचे करिए, ऊपर करिए मैम. Okay. नहीं नहीं, yeah, it's fine. You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you're not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing. Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover it has been discounted. When there is a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers the interest rate or a service provider offers you a far better package, your money magically increased through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situation where you can receive money? Yes. So we have to register. We have to keep registering that we are being offered with money. हम लोगों को पता नहीं चलता. हम लोगों को जब कई बार हम लोग Amazon में कोई चीज देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इतना डिस्काउंट उसमें मिल रहा है. हम लोग सोचते हैं we take it as granted कि मिलना ही चाहिए, मिलना ही था हमें. लेकिन आप ये सोचो वो डिस्काउंट आपको मिल रहा है ना, तो we have to be grateful for that. आपके पास कोई गिफ्ट आपके फ्रेंड ने आपको दिया है एंड ठीक है, आपको हो सकता है वो पसंद ना आ रहा हो, लेकिन that person has bought that gift in exchange of money only ना, तो आपको उसको भी वेलकमिंग करना, वो भी आपका एक एसेट ही बना, राइट? तो इस तरह से आपको जितनी भी आपको मान लीजिए कोई चीज आपको गिफ्ट में मिली एंड यू रियली नीडेड दैट थिंग. होता ना कई बार की जैसे कि आपको वो चीज मिल जाती है और आपको लगता है इस चीज की तो कमी थी मेरे पास, तो दैट इज द वे द यूनिवर्स रिवॉर्ड्स यू. आपके किसी अच्छे कर्म के लिए आपको वो वाला जो गिफ्ट मिला है जिसकी आपको जरूरत थी, राइट? तो इस तरह से हम लोगों को उसको रजिस्टर करना पड़ेगा कि मनी जो है हमारे लाइफ में एक टैक्स रिफंड की तरफ से आ सकता है, या फिर कोई हम लोग मॉल में गए हैं, आपको डिस्काउंट कूपन्स मिले हैं, उसके तरह से आ सकता है वो मनी आपके पास. किसी भी फॉर्म में वो मनी आ सकता है. हो सकता है आपकी फ्रेंड आपको लंच पे लेके जाए एंड वो इस बात पे इंसिस्ट करे कि आई एम गोइंग टू पे फॉर दैट, तो देयर आल्सो यू सेव्ड मनी, राइट? तो एवरी मनी सेव्ड इज एवरी पेनी अर्न्ड, यू नो. आप जितना भी आप पैसा जो आप सेव कर लेते हो, दैट एड्स टू योर वेल्थ. कोई भी चीज हो, कोई भी एसेट हो, आपने सेल किया, उसके एवज में आपको पैसे मिले, वो जो पैसे है आप उसको री इन्वेस्ट करके और जगह भी आप उसको री इन्वेस्ट करके अपने पैसे को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो दैट इज एडिंग टू योर वेल्थ, राइट? हम लोगों को जस्ट वॉचफुल होना पड़ेगा. उन पर्टिकुलर इंसिडेंसेस को हमें रजिस्टर करना पड़ेगा माइंड में, एंड वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट.
कई बार जैसे आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट्स जब लोअर कर देती हैं, तो बैंक्स भी अपने जो भी हमें लेंडिंग चार्जेस होते हैं उनको रिड्यूस कर देते हैं, बट वी टेक इट एज ग्रांटेड कि हमें तो रिवर्स, रिजर्व बैंक ने अगर घटाया है तो बैंक्स को भी घटाना चाहिए। पर उन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, वो अपने चार्जेस को उसमें इंक्लूड करके ही करते हैं। तो जितने बार आप उन छोटे छोटे और बड़े बड़े इंसिडेंसेस को रजिस्टर करेंगे अपने दिमाग में, उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आपके पास वो पैसा आता जाएगा फ्रॉम नोवेयर, लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आ रहा है। आई गिव यू एन एग्जांपल कि वंस आई वाज बुकिंग टिकट्स फॉर सम प्लेस कि मैं प्लेन के टिकट्स बुक कर रही थी, तो मुझे ना वो पर्टिकुलर जो, जस्ट फॉर एग्जांपल आप कोई एक्स अमाउंट लगा लो मुझे ना वो 8,000 का दिख रहा था वो वाला अमाउंट। तो मैंने, अब मेरे पास ना वो उस टाइम ट्रांजैक्शन करने का स्कोप नहीं था कि मैं अपने कार्ड को यूज नहीं कर पा रही थी। तो मैंने अपने कजन को फोन किया, मैंने कहा कि भाई आप देखो कितना आ रहा है। मतलब आई वॉज एस्टोनिश्ड कि मुझे तो वो 8,000 के टिकट दिखा रहा था, लेकिन उनको 17,000 का टिकट दिखा रहा था, सेम सेम फ्लाइट पे, सेम फ्लाइट पे, ऑलमोस्ट सेम आयल का या फिर विंडो का सीटों का जो भी वट एवर इट इज, वो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो वो आपको 17,000 का दिखा रहा था उनको, मुझे 8,000 का दिखा रहा था वो। मैंने कहा मतलब वो कैसे हो सकता है भैया, ऐसा नहीं है, आप ये देखो मतलब 8,000 का है। मैंने उनको जब स्क्रीनशॉट भेजा ना अपना लेकर कि देखो मुझे ये दिखा रहा है, सेट तो मतलब कहाँ से, मुझे तो 17,000 दिखा रहा है। वो पर्टिकुलर लिंक जब मैंने उनको भेजा ना, तब उनको दिखाई दिया कि हाँ मुझे इतना कोट कर रहा, मतलब यूनिवर्स वांट्स टू गिव मी दैट, जितना भी मेरा अमाउंट बचा ना, दैट इज अ रिवॉर्ड फॉर मी, जो मेरे अच्छे कर्मों के लिए या फिर जो मैंने मनी के लिए कभी कुछ किया होगा, या किसी और रिलेशनशिप के लिए मान लो मैंने अच्छा किया है, उसके लिए भी आपको मिलता है। तो वही चीजें हैं कि यू नेवर नो दैट किस तरह से यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करे, किस तरह से आपके पास पैसा है। वी जस्ट हैव टू कीप रजिस्टरिंग, छोटी छोटी चीजों को रजिस्टर करेंगे ना, तो आप बड़ी बड़ी जो अमाउंट्स है, बड़े बड़े ट्रांजैक्शन को भी रजिस्टर कर पाएंगे। अभी मैंने पहले शेयर किया था, मेरी एक फ्रेंड है, वो बता रही थी, और मेरे साथ भी वही इंसिडेंस हुआ कि जैसे हम लोग इक्विटी का काम करते हैं, तो उसमें ना ना तो वो अमाउंट मेरे बैंक में है, मतलब मुझे नहीं पता उसका जो, लाइक आई एम नॉट गेटिंग द टेल्स ऑफ इट कि कहाँ से वो आया है, एंड मेरे डीमैट में भी नहीं, आई डोंट नो कि कहाँ से वो पैसा आया है, बट वो आ रहा है। आई लाइक यू नेवर नो कि किसी कंपनी का डिविडेंड हो सकता है, और डिविडेंड जब मैं चेक करूं तो डिविडेंड में भी नहीं, डिविडेंड में भी वो वाला अमाउंट नहीं दिखा रहा है। तब जस्ट कहाँ से आया, फिर वही मैम की बात याद आ जाती है कि यू डो नॉट हैव टू पुट योर हेड इनटू कि कहाँ से आया, वी जस्ट हैव टू कैरी ऑन। सो इस तरह से हम लोगों को छोटी छोटी चीजों को रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को मनी रिसीव करने के लिए, राइट? सो यस मैम, कहाँ से? Yeah, from here only. मोस्ट Most लाइकली Yeah, most likely you have experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not at the time, they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's universal law. Any circumstance that results in you having more money or receiving something that cost money is a result of your gratitude. You'll feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. When I arrived in the United States several years ago, I arrived with 2 suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I did not have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift me a driver. Is my voice echoing?
Yes, ma'am, it's coming in a bit of lag. Otherwise, it's okay. Carry on. A person I knew decided to give to me a driver and a car for a new months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly, I had my own personal driver and car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude bank of the universe, and you are going to write out the magic check to yourself. Fill in the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Choose a specific amount of money for one thing you really want, because you will be able to feel more gratitude for the money when you know what you are going to spend the money on. Money is a means to what you want, but it is not the end result. So if you just thought about money, Percy, you would not be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank magic check from www The Secret Magic Check. If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check. The benefit of starting with a smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it. You will know absolutely that the magic of gratitude worked, and the gratitude and joy you feel will make bigger amounts believable to you. तो इसमें रोंडा बर्न ने क्या किया है ना, रोंडा बर्न ने पहले अपने बारे में बताया है, अपने लाइफ के बारे में कि किस तरह से उनको जो है ना, उनको लाइफ में इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी उन्होंने कभी भी ग्रैटिट्यूड का सहारा नहीं छोड़ा। उनके पास कुछ भी नहीं था जब वो ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका आई, उनके पास कुछ भी नहीं था। सिर्फ मतलब कहते हैं ना कि बस एक छोटा सा अपार्टमेंट था, उनके पास एक कंप्यूटर था। अब चूंकि वो ऑथर थी, वो स्क्रिप्ट राइटर वगैरह थी, तो उस कारण से उनके पास वो कंप्यूटर था और बस कहते हैं ना 4 चम्मच और 1 प्लेट होना, वही था उनके पास। बट वो जैसे यहाँ पर आई, उन्होंने ग्रैटिट्यूड का दामन जो है ना वो नहीं छोड़ा। शी केप्ट ऑन लीनिंग ऑन ग्रैटिट्यूड। शी वाज थैंकफुल फॉर व्हाटसोएवर शी हैड एट दैट मोमेंट। तो आप अगर ग्रेटफुल होते हो कि जो चीज आपके पास अभी है, हो सकता है आपके पास अभी बहुत बढ़िया कार ना हो सकता है आप एक हैचबैक में काम चला रहे हो, लेकिन अगर आप उस हैचबैक के लिए भी अगर आप ग्रेटफुल होते हो ना, तो आप जो आप डिजायर करते हो ना, आप जैसे मान लीजिए आपको कोई बहुत बढ़िया सी एसयूवी या ऐसा कोई गाड़ी आप डिजायर करते हो, आपके पास वो जरूर आएगा। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव राइट नाउ, जैसे रोंडा बन की स्टोरी हमें बताती हैं। इसके अलावा हमने और भी, आपने वो एक्सक्यूज मी, स्टीव हार्वी को देखा होगा। स्टीव हार्वी एक अमेरिका के हॉलीवुड के स्टार हैं, कॉमेडियन है बेसिकली, और आजकल तो बहुत मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं। तो वो उनका सुन रही थी मैं, वो ये बोल रहे थे कि मतलब ही इज अ स्टोरी ऑफ रैग्स टू रिचेस। तो ही वो सेइंग कि आई डू नॉट हैव एनी एजुकेशन। एक एजुकेशन का ब्लॉक भी हमारे माइंड में होता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, राइट? कि अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो पैसा कहाँ से कमाओगे, कहाँ से ऐसी लाइफ अफोर्ड कर सकोगे? ऐसा नहीं है। हम लोग अगर अंबानी के बारे में सोचें, हम लोग धीरू भाई के बारे में सोचे, तो वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज वो कहाँ पर है, उनकी जो प्रोजनी है, उनके जो बच्चे हैं, मतलब मुकेश अंबानी, वो कहाँ पर पहुंच गए हैं। वो इसीलिए पहुंचे हैं ना कि उसका पढ़ाई लिखाई से आपके जो आप मनी अट्रैक्ट करते हो या फिर जो आप बिजनेस करते हो, उसका इतना संबंध नहीं है जिसको हम लोगों ने बहुत ज्यादा ब्लॉक कर रखा है अपने माइंड में कि नहीं पढ़ोगे तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा, आप एक लग्जूरियस लाइफ को कैसे लीड कर सकोगे। ऐसा नहीं है।
तो वो भी एक हमारा मेंटल ब्लॉक है। स्टीव हार्वी ने वही बताया कि मेरे पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, कोई पैसा नहीं था कि मैंने वो ओन मतलब हेरिडिटी से मुझे मिला हो, मेरे पास खाली अपना टैलेंट था, एंड आई ऑलवेज हैड दिस इन माइंड दैट आई हैव टू बी थैंकफुल फॉर व्हाटसोएवर आई हैव एट दैट मोमेंट। कहता मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था कि आपको प्रे करते रहना है अपनी चीजों के लिए जो है, क्योंकि उनके हमारे जो बाइबल वगैरह में यही लिखा हुआ है ना कि आपको जो है उसके लिए थैंकफुल होना पड़ेगा, जैसे हमने पहले पढ़ा ही था। तो ये करके और अपना अपने काम को ढंग से करके ही वो आज इस पोजीशन में पहुंचे है कि ही इज अ मिलियनेयर नाउ। तो ये रिच स्टोरी जो है रोंडा बन की ले लो, चाहे ओपरा विनफ्रे की ले लो, चाहे स्टीव हार्वी की ले लो, ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं। अगर आप स्टीव जॉब्स के बारे में भी सुनोगे तो वो भी इधर उधर भटकते थे। आपको पता है वो गुरुद्वारे में आके खाना मतलब गुरुद्वारे में टाइम स्पेंड करते थे ताकि उनका होटल का किराया बच जाए। अगर सुनील भारती मित्तल के बारे में आप सुनोगे, जो एयरटेल के जो ओनर है, वो भी मतलब वो एक्सपीरियंस करने के लिए कि भाई किस तरह से वो बाहर जाके अपना सीख कर उसके बाद उन्होंने बैटरीज जो भी जैसे भी उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, वो अपने पैसे सेव करके बचा के मतलब इन द सेंस कि वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही हार्वर्ड ग्रेजुएट है तब जाके वो यहाँ पर पहुंचे हैं आज लाइफ में। ऐसा नहीं है। वो वाला मेंटल ब्लॉक भी हम लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। जो आपके पास अभी है उसके लिए शुक्राना करेंगे, तभी हमारे पास और ज्यादा आएगा। सो इन टुडेज प्रैक्टिस रोंडा बन सेज कि एक चेक हम लोगों ने भरना है जो कि यूनिवर्स की तरफ से हमारे लिए होगा। अमाउंट उसमें यूनिवर्स नहीं भरेगा, उसमें हम भरेंगे। जिस भी चीज का अटर डिजायर है, जो हमें चाहिए कि भाई ये मुझे चाहिए चीज, उस एक चीज के लिए अगर हमें उसका अमाउंट अभी हमारे दिमाग में पता नहीं है तो इट्स वेरी इजी नाउ डेज कि हम लोग गूगल कर सकते हैं वो क्या अमाउंट है। वो पर्टिकुलर अमाउंट, वही अमाउंट लेकर हमने चेक में वो भरना है। उस चेक में क्या करना है, हमने डेट जो है, डेट इंपॉर्टेंट है, हमने वो चेक में आज का डेट डालना है, फ्यूचर का डेट भी नहीं डालना। पावर ऑफ नाउ को हम लोगों ने सोचना है, उसको एक्सरसाइज करना है। तो पावर ऑफ नाउ को सोचते हुए हमने उसमें डेट जो है वो आज की डालनी है। जो पेइंग का नाम होता है, मतलब जिन रिसीवर का नाम होता है, उसमें हमने अपना नाम डालना है और नीचे तो यूनिवर्स का साइन करना है। अगर मान लीजिए आपके पास ये वाला चेक ना हुआ, कि जो हमारे पास जो प्रिंटेड चेक्स होते हैं वैसे हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, अगर वो नहीं भी है, आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप उसका फटाफट से अभी प्रिंट आउट निकाल लो, तो क्या करना है ना, आपने अपना नॉर्मल जो हम लोग चेक लेते हैं वही ले लेना, और उस पे हम लोग को खाली जो जहां पर हमारा अकाउंट नंबर और नाम लिखा होता है, सिग्नेचर करा होता है, उसको काट के उसके ऊपर द यूनिवर्स लिखना है। बस इतना ही करना है। और बाकी हम लोगों ने चेक के ऊपर 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू रेड पेन से आप लोग कर लेना कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखकर उसके बाद आप डिजायर्ड अमाउंट भर दो। और उस अमाउंट को भर के उसको हाथ में लेके उसको फील करना है, हाथों की एनर्जीज का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद उस चीज के लिए विजुलाइज करना है। विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विजुलाइज करने से ना हमारे अंदर रिसीविंग वाली फीलिंग आती है कि वी हैव दैट थिंग एंड हाउ वी आर फीलिंग राइट नाउ। जो हमने बेंटन मसारो की बुक पढ़ी थी, उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि आप जिस चीज का आपको अटर डिजायर होता है ना, तो आपको ये फील करना चाहिए कि वो चीज आपके पास 6 महीने से है और आप उसको यूज कर रहे हो। वो फील करोगे तो आपके फेस में आराम से अपने आप ही स्माइल आ जाएगा उस चीज को इमेजिन करके। जितना ज्यादा इमेजिन और विजुलाइज करोगे वो चीज आपके पास उतनी जल्दी आएगा। देयर इज नो टाइम एंड स्पेस रियलिटी। हमने पिछली बार अपने ख्याल से 1-2 सेशंस पहले ही वो आरती को देखा था। आरती ने, आपको पता है, मतलब शाम के 5-6 बजे मेरे ख्याल से चेक भरा था उसने, और क्योंकि शी वाज अ बिट कंफ्यूज्ड, तो उसने 5-6 बजे चेक भरा था, और अगले दिन मैं मॉर्निंग में सुन रही हूँ कि वो शेयर कर रही है कि वही चीज उसके पास 2 घंटे के अंदर आ गई, जिस चीज का उसने डिजायर था, जिस चीज के लिए उसने वो चेक भरा था। तो इट्स अमेजिंग। इस तरह से होता है। सविंदर आंटी ने भी एक बार शेयर किया था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको हो सकता है 1 महीना भी लग जाए, कोई बात नहीं, आपने लेकिन परसिवरेंस को हमने हमेशा एक्सरसाइज करना है। उसका हम लोगों ने करना है कि वी हैव टू स्टिक ऑन आवर प्रैक्टिसेस। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं आए, या हमारी एनर्जी अगर रेज्ड होगी, अगर हम लोग गुड फीलिंग जोन में रहेंगे, अगर हमने प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो जरूर आएगा हमारे पास। ठीक है। अगर हमने रिलेशनशिप वाला नहीं किया, रिलेशनशिप वाला प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन मनी वाले सारे कर लिए, फिर भी नहीं।
क्योंकि हमने क्या करना है ना, हमने अपने हर एक चीज को खूबसूरत बनाना है ना, अपने रिलेशनशिप पे भी काम करना है, हमारे लिए जो खाना बनाते हैं, जो फार्मर्स हमारे लिए खाना उगाते हैं, उनके लिए भी करना है। तो मतलब कि डे 16 तक सारे के सारे अगर हमने अच्छे से करे हैं सारे एक्सरसाइजेस, तो आपका ये चेक बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि आप फोटोकॉपी निकाल सकते हो, या फिर आप, हम लोग जैसे मैम भी बोलती हैं, मैंने भी कई बार किया है ऐसा, कि अपना चेक जो है ना, अपने चेकबुक में से एक लीफ फाड़ लो और उसमें कर लो, क्योंकि आजकल वैसे भी चेक्स का थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल होता है ना, जब जब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह हुए हैं, तो इसलिए। और इसके लिए हम लोगों को जो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के पोर्टल्स हैं, इनके लिए भी बहुत ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए। मतलब मनी रिलेटेड जो भी चीजें हैं ना, जितने भी जहां से मनी का रिलेशन है कोई भी चीज से, उस चीज के लिए हम लोगों को थैंकफुल होना है और इस प्रैक्टिस को करना है। ठीक है। सो या नीतू मैम, आप पढ़े, वंस यू हैव फिल्ड इन द Yeah. डिटेल्स। Yeah, once you have filled in the details of the magic check, hold the check in your hands and think about the specific thing you want the money for. Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. Maybe you want the money for a few pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery so you can feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane ticket or opening a college bank account and feel as happy and grateful as if you have really received it. After you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions during the day today, take the magic check in your hand, picture yourself actually using the money for what you wanted, and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can't do it too often. At the end of today, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or a wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that now you can have or do what you want. When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want, and continue with the magic check practice as long as you want. Magic practice number 17. The magic check. Point number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point number 2. Fill in your magic check with the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Point number 3. Hold your magic check in your hand and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have received it. Point number 4. Take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On at least 2 more occasions, take the check in your hand, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. Point number 5. At the end of today, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on
Replace the check with a new amount for something else you want. And repeat steps 2 to 4. Point number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you. Thank you so much, Meetu ma'am. You're always a savior. Thank you. So ये मैजिक चेक का प्रैक्टिस कैसे करना है वो तो हमने कर लिया है डिस्कस ऑलमोस्ट। तो इसमें क्या है ना, हम लोगों को वी हैव टू बी वॉचफुल कि वो मनी जो है ना, जो आपने मैजिक चेक में भरा है, इट कैन कम इन एनी फॉर्म। हो सकता है कोई गिफ्ट की तरह से आ जाए आपके पास, जैसे कि मतलब आपको कोई चीज की जरूरत हो, कोई आपने वो जो अमाउंट भरा, किसी ने आपको कोई गिफ्ट वो वाला ही सेम चीज आपको गिफ्ट कर दिया। सेकेंड तरीका हो सकता है वो आपके पास 2 टुकड़ों में आ सकता है। फर्स्ट अमाउंट आपके पास एक बार आया, और सेकंड अब आपने मान लीजिए कोई कैश रिसीव किया, मान लीजिए आपने 50,000 का कोई चेक भरा है, ठीक है, आपने उसमें से 30,000 रिसीव कर लिया है, और आपको पता चलेगा कि 30,000 आ गया, और पता नहीं कहाँ से 20,000 का आपके अकाउंट में वैसे क्रेडिट हो गया। मतलब यू हैव टू बी वॉचफुल फॉर दैट। जैसे कि हमारे पीछे पार्टिसिपेंट थी, उन्होंने शेयर किया था, पल्लवी बैंगलोर से, उसने शेयर किया था कि किस तरह से उनको वो डिस्काउंट का जैसे वो पहले जिस आर्किटेक्ट को हायर कर रहे थे, उन्होंने जितना अमाउंट कोट किया था ना, वहां से उसको वो वाला अमाउंट, वहां से हाफ द अमाउंट शी हैड टू पे, और उसका बाकी का अमाउंट जो है वो और जगह ना स्पेंड करके फिर वो वहां पर उसका यूज हो गया था। जैसे मान लीजिए शायद उसने 5 लाख वगैरह का कुछ भरा हुआ था, तो उसमें से हाफ अमाउंट एक जने को पेमेंट हो गई, और दूसरी जगह दूसरा जो है ना वहां पर पेमेंट होके, जो उसने अलग से कर रखा था ना कि ये वाला अमाउंट मुझे यहाँ पे करना है, वो अमाउंट उसके पास अपने आप आ गया। इस तरह से ये काम करता है। शिवा भी बता रही थी कि उसको एक चीज की जरूरत थी, पता नहीं कोई वॉच का उसने सोचा था, एंड शी गॉट दैट वॉच एंड समथिंग फ्रॉम हर फ्रेंड, या प्रिंटर की बात पता नहीं की थी उसने शायद। तो इस तरह से वी हैव टू कीप रजिस्टरिंग, वॉचफुल रहना पड़ेगा कि कहाँ से वो जो अमाउंट हमने भरा है, इट कैन कम इन एनी फॉर्म, ठीक है। तो ये आज का जो ये प्रैक्टिस है, हमने अभी सेशन के बाद ही शुरू करना है। हम लोग काउंट माय ब्लेसिंग्स तो कर चुके हैं, अब मैजिक चेक वाला जो है, हमने ये चेक सेशन के बाद ही भर देंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख कर। और अगर प्रिंट आउट निकल पाए चेक का तो ठीक है, नहीं तो हम अपने चेक में ही कर लेंगे उसको। और उसके बाद उस चेक को हाथ में पकड़ना है, अपनी उंगलियों में पकड़ के हमें ये फील करना है कि वी हैव दैट थिंग अभी से ही, और उसके बाद उसको रख देंगे। माइंड में हमारा रहेगा ये चेक का बात कि हाँ भाई ये है ही हमारे पास। और उसके बाद क्या करना है ना, दिन में 2 बार ऐसे इंसिडेंसेस में आपने वो निकालना है चेक को, कि आप उसको देखो और उसको एक बार फील कर सको, कि आप देखो कि हाँ ये अमाउंट के लिए मैंने चेक भरा है, आई वॉन्ट दिस, किस लिए, कि ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली जाए कि मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाली प्रैक्टिस करनी है। और अगर मान लीजिए अगले वाला जो मैजिक चेक वाला जो चैप्टर आएगा अगले वाले महीने में, जब हम दोबारा से पढ़ेंगे, आपका चेक उससे पहले रियलाइज हो जाता है, आई विल प्रे कि आपका चेक बहुत जल्दी रियलाइज हो जाए। तो हमने क्या करना है, इसी तरह से एक और नया चेक भर देना है, और उस चेक को आज के दिन तो हमने अपने पास रखना है। उसके बाद आज की प्रैक्टिस होने के बाद आप उसको अपने वॉलेट में रख सकते हैं, आप अपने मिरर के आगे लगा सकते हैं, जहां पर आप बहुत जल्दी उसको देख सकें। कहते हैं ना कि आपके माइंड में जितनी बार जाएगा, जितनी बार आप उसको देखोगे, उतनी बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो उसका पैटर्न बन जाता है, और आप बहुत जल्दी उसको रिसीव कर पाते हैं, ठीक है। तो दिस कंक्लूड्स आवर मैजिक प्रैक्टिस ऑफ द मैजिक बुक टुडे। सबसे पहले हमने काउंट माय ब्लेसिंग्स जो हमने कर लिया होगा, नहीं भी किया है तो हम उसको करेंगे, और उसके बाद हम लोग मैजिक चेक का प्रैक्टिस करेंगे जैसा कि हमने समझाया, और रात को अच्छी अच्छी चीजों को याद करके हम लोग फिर मैजिक रॉक का प्रैक्टिस करेंगे, और दिल से सबसे अच्छी चीज हुई है आज की, उसके लिए शुक्राना करेंगे। या हम लोग अब नेक्स्ट वाले बुक में जाते हैं, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं फियर्स के बारे में। एंड वहां पर भी एक्चुअली हमारा यहाँ पर टाइम ज्यादा लग गया है, क्योंकि वहां पर बस आज ये चैप्टर जो है ना वो होने वाला, कंक्लूड होने वाला है। या तो रितु मैम विल बी रीडिंग टुडे। यस रितु मैम, Yes, thank you. डिलीवर Deliver yourself from all fears. Use this perfect formula for casting out fear. I sought the Lord, and he heard me and delivered me from all my fears. Psalm 34:4. The Lord is an ancient word meaning law.
the power of your subconscious mind. Learn the wonders of your subconscious and how it works and functions. Master the techniques given to you in this chapter. Put them into practice now, today. Your subconscious will respond and you will be free of all fears. I sought the Lord and he heard me and delivered me from all my fears. Step this way to freedom from fear. Just ma'am, let us explain a bit, है ना, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं. And I will see दीप्ति मैम क्या है सेशन में, मैम अगर करना चाहें तो, if ma'am is there then she can like give in her inputs. मैम क्या है, we can see. Ma'am, if you're there then please unmute yourself and take your seat. So शायद नहीं होंगे मैम. नहीं है मैम. अभी तक नहीं है. अच्छा नहीं. मैम नहीं है. Okay. So we are studying about our fears कि हम लोग अपने subconscious mind को डॉक्टर मर्फी ने बहुत ही खूबसूरती से हमें समझाया है कि हम अपने subconscious mind की पावर को इस्तेमाल करके कैसे अपने डर पे विजय प्राप्त कर सकते हैं. और डर पे अगर हम लोग अपना विजय प्राप्त कर लिया हमने, तभी हम लोगों को अपनी जो भी ड्रीम्स हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं, जो भी ड्रीम्स हमारे मन में है, वो हमारे लाइफ में आ जाएंगे, वो एक्चुअलाइज कर लेंगे. तो उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए थे. अब इन तरीकों के बारे में हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे ही, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि डिलीवर योरसेल्फ फ्रॉम ऑल योर फियर्स. ये बात जो है ना, ये उन्होंने बाइबल में से ले रखी है. ये Psalm 34:4 का है. तो ही सेड कि मतलब भगवान ने भी, बाइबल में भी जिन्होंने लिखा है वो यही लिखा है कि आपको अपने माइंड को जो फियर्स से फ्री करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्सेल इन योर लाइफ. फियर्स हमें लिमिट करते हैं. थोड़ा सा फियर हमारे लिए जरूरी जो होता है, जो नॉर्मल फियर्स है ना, वो ठीक है. वो कैसा फियर होगा, आप जैसे मान लीजिए कल को आपका कोई मैच है, फाइनल मैच है, आपकी प्रिपरेशन चाहे कितनी भी हो, आपको लगेगा कि मैं पता नहीं कैसा परफॉर्म करूंगी. तो वो वाला फियर जो है ना, वो आपको और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा. वो वाला फियर ठीक है. कल को आपका यूपीएससी का एग्जाम है और आज आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ, वो थोड़ा सा फियर है ना, वो ठीक है. एक बार मैंने इस फियर के बारे में ना सेरेना विलियम्स को सुना था. वो कह रही थी कि मेरा अगले दिन जब मैच होता है ना, कोई भी मैच होता है, उसके एक दिन पहले ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन मैच में जाके हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विनर वही है आज, सेरेना विलियम्स. उसी तरह से थोड़ा सा जो होता है ना, वो स्ट्रेस जो होता है वो हमारे लिए जरूरी होता है. सिर्फ उसी के लिए हमारे पास भगवान ने या फिर आप ईश्वर ने, यूनिवर्स ने हमें जो है ना स्ट्रेस हार्मोन दे रखा है. हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन इसीलिए है कि थोड़ा सा स्ट्रेस हमारे लिए नेसेसरी भी है ना. नहीं तो अगर स्ट्रेस हार्मोन नहीं होगा ना, तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि अगर हमारे सामने मान लीजिए कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है, अचानक से कोई चीज आ जाती है, तो हम कैसे उसको डील करेंगे. हमें उसके लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन चाहिए होगा ना, कि हम उसको कैसे डील करेंगे. वरना इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस या थोड़ा सा फियर जरूरी होता है. लेकिन उसके अलावा जितने भी फियर्स हमारे माइंड में होते हैं, वो हमारे लिए ब्लॉक्स हैं. उन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करके उनको निकाल कर हम लोग एक अच्छी लाइफ को लीड कर सकते हैं. हमारी ड्रीम लाइफ तभी आएगी, हम लोग अपने लाइफ में तभी अपने पंख फैला पाएंगे जब हम उन फियर्स से दूर हो जाएंगे. लाइक कंफर्ट जोन में रहने के लिए फियर हमें मजबूर करेगा कि हमें कंफर्ट जोन में रहना है, लेकिन हमको उस कंफर्ट जोन को तोड़ के निकल कर हमने अपनी लाइफ को जीनी है, हमने अपने ड्रीम्स को पाना है. इसके लिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि डिलीवर योरसेल्फ फ्रॉम ऑल योर फियर्स. तो उन्होंने वही कहा है जो ये वाला जो बाइबल में लिखा हुआ है. उन्होंने लिखा है कि आई सॉट द लॉर्ड एंड ही हर्ड मी एंड डिलीवर्ड मी फ्रॉम ऑल माय फियर्स. उन्होंने जो भी टेक्निक्स हमें दी थी ना, हम लोगों ने ना इस बुक के बारे में, हम लोग में से बहुत जने करते हैं कि हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. और सबसे ब्यूटी इस बुक की पता है क्या है, आपको डे 1 से करने की जरूरत नहीं है. आपने कोई भी टॉपिक उठाया, कोई भी चैप्टर उठाया, उसी से शुरू करके उसी में मास्टर कर सकते हैं. उसी चीज को हम पाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को टेम कर सकते हैं. उसी चीज को पाने के लिए हम लोग उसकी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. तो ये सारी मेंटल प्रैक्टिसेस दे रखी है उन्होंने, अफर्मेशंस दे रखी है. हम लोग उनको करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार कर सकते हैं कि किस तरह से मनी मान लीजिए चाहिए, रिलेशनशिप अच्छे करने हैं,
कंफर्ट जोन से निकलना है, हमने फियर को लिमिट करके, है ना। वो फियर जो है हमें लिमिट करने के लिए आया है ना, हम ही लिमिट कर देंगे फियर को इस बुक के जो तकनीक है वो यूज करके, है ना। तो इस तरह से है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो स्टेप्स हैं, मतलब एक छोटा सा रिकैप दिया है उन्होंने, ये भी बहुत मुझे अच्छा लगता है कि अगर आपने मान लीजिए इतना टाइम नहीं है आपके पास अभी कि आप इस चैप्टर को पढ़ने में आधा घंटा लगा सकें, तो हम लोग ये समरी मिल जाती है, ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है। उन्होंने इसमें ना इन पॉइंट्स में समराइज कर रखा सारे के सारे तरीके कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। यस ऋतु मैम। Scroll it down, please. ओके, इट्स नॉट विजिबल, अभी ये दिख रहा है। Yeah. Step this way to freedom from fear. Step 1. Do the thing you are afraid to do, and the death of fear is certain. Say to yourself and mean it, I am going to master this fear, and you will. Step 2. Fear is a negative thought in your mind. Supplant it with a constructive thought. Fear has killed millions. Confidence is greater than fear. Nothing is more powerful than faith in God and the good. Third, fear is man's greatest enemy. It is behind failure, sickness, and bad human relations. Love casts out fear. Love is an emotional attachment to the good things of life. Fall in love with honesty, integrity, justice, goodwill, and success. Live in the joyous expectancy of the best, and invariably the best will come to you. 4. Counteract the fear suggestions with the opposite, such as I sing beautifully, I am poised, serene, and calm. It will pay fabulous dividends. 5th. यस, जस्ट अ मोमेंट मैम। हाँ, तो इसमें क्या है ना कि डॉक्टर मर्फी ने पहले लाइव एग्जांपल्स के साथ हम लोगों को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है कि किस तरह से हम अपने फियर पे काबू करके हम अपने लाइफ को अच्छा और एक्सेल कर सकते हैं अपने लाइफ में, हम अपनी डिजायर्ड जो चीजें हैं उनको पा सकते हैं। फियर को काबू करना इसकी बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। वो कहते हैं फियर के कारण ही होता है, कई बार हम लोग ना कोई चीज कर, जैसे मेंटल ब्लॉक्स जो है ना, या फिर हमारे जो बैड वर्ड्स हैं या डेरोगेटरी वर्ड्स हैं जो भी हम किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए शादी से पहले लगे पता नहीं कैसा होगा ये, वो कहीं मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, मतलब आई डू नॉट वांट टू टेक दोस थिंग्स, लेकिन वो वैसा हमारे दिमाग में ना वो थॉट्स आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने ना मान लीजिए कोई ऐसा कपल देखा हो जहां पर रिलेशनशिप ऐसे अब्यूजिव रहे हो, तो उसके मन में ना उस चीज का फियर बैठ जाता है। वो हर एक रिश्ते को, हर एक लड़की को उसी नजर से तोड़ने लग पड़ता है कि कहीं ऐसा मेरे साथ भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, एक ये रिस्क है, लेकिन वी गॉट टू टेक द रिस्क। कहते हैं ना, लाइफ इज अ रिस्क एंड वी हैव टू रिस्क इट। हम लोगों को वो रिस्क अगर नहीं लेंगे, अपना रिस्क एवर्जन अगर नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर कैसे हम एक्सेल कर पाएंगे। अगर हमने रिस्क नहीं लिया होता तो आज भी हम लोग जंगल में बैठकर आदि मानव की तरह होते। उन्होंने आदि मानव, उन्होंने रिस्क लिया, वो जंगल से निकल कर आए, उन्होंने कम्युनिटी बनाई, और आज हम लोग यहाँ पर है। इट्स जस्ट बिकॉज दोज पीपल टुक रिस्क्स, है ना। वो भी डर के मारे बैठ सकते, तो आज अब अभी भी हम लोग ना वो पेड़ में लटके होते बंदरों की तरह। ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने फियर पे काबू करके आगे बढ़े हैं। हमने भी ऐसा करना है। गॉड पे फेथ रखो, अपने ऊपर फेथ रखो, क्योंकि गॉड हमारे अंदर है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो हमने उसकी पावर को रिकॉग्नाइज करके अपने फियर को लिमिट करके अपने लाइफ को एक्सेल करना है। जब भी कोई फियरफुल थॉट आएगा, उसको ऑपोजिट सोच लेना है और उस ऑपोजिट थॉट को उस फियरफुल थॉट के ऊपर सुपर इम्पोज करना है। जो चीज हमें करने से मना कर रहा है ना कि अभी मत उठ, अभी आराम से सो जा, हमने क्या करना है, हमने उठना है, तभी देन एंड देयर हमने उठना है। एक और चीज, हमने कभी भी ना एक अलार्म में ना कई बार उठने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है ना, हम लोग बहुत सारे अलार्म्स लगा लेते हैं, या फिर स्नूज बटन करते हैं, हम लोग स्नूज कर देते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद उठेंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद भी तो आपने उठना ही है ना, तो अभी क्यों नहीं। अगर आपका मन जो है 3 बजे उठने का नहीं करता, अगर आप इतना इनफ नहीं सोयो, 5 बजे उठ जाओ, लेकिन जो डिसाइड किया है ना उस पे कायम रहो। अगर 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठो,
नहीं मन करता 5:30 उठो, लेकिन ऐसा मत करो कि 4 बजे से वो अलार्म बज रहा है आपका और आप उसको स्नूज करे जा रहे हो 5 बजे तक के लिए। उससे क्या होता है, एक आपके अंदर एक लिमिटिंग फैक्टर अगेन एक आ जाता है, एक मेंटल ब्लॉक बन जाता है, जो कि आपको सुबह उठने से या कोई भी काम करने से फॉर दैट मैटर रोकता है। सो वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट। इन स्टडीज का फायदा तभी होगा हमें जब हम इन चीजों को अप्लाई करेंगे, है ना? So yes, ma'am. Now the fifth point we have to read. Yeah. Yes. Fear is behind amnesia at oral and written examination time. You can overcome this by affirming frequently, I have a perfect memory for everything I need to know. Or you can imagine a friend congratulating you on your brilliant success on the examination. Persevere and you will win. Sixth, if you are afraid to cross water, swim. In your imagination, swim freely, joyously. Project yourself into the water mentally. Feel the chill and thrill of swimming across the pool. Make it vivid. As you do this subjectively, you will be compelled to go into the water and conquer it. This is the law of your mind. 7. If you're afraid of closed places such as elevators, lecture halls, etc., mentally ride in an elevator, blessing all its parts and functions. You will be amazed how quickly the fear will be dissipated. 8. You were born with only 2 fears, the fear of falling and the fear of noise. All your other fears were acquired. Get rid of them. 9. Normal fear is good. Abnormal fear is very bad and destructive. To constantly indulge in fear thoughts result in abnormal fear, obsession, and complexes. To fear something persistently causes a sense of panic and terror. 10. Yeah, just a moment, ma'am. Just a moment, ma'am. So जो ये fears होते हैं ना, ये हमारे अंदर न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। अब न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि when you know that you have a problem, when you know that मुझे ना एक दिक्कत हो रही है, मैं बार बार जो हाथ धो रही हूँ ना, तो वो एक दिक्कत है मेरी। अगर आप 2 बार हाथ धो रहे हो, 4 बार धो रहे हो, दिन में 10 बार धो रहे हो, तो ठीक है। लेकिन जब वही आपका 50 बार हो जाता है, 100 बार हो जाता है, वो आपका प्रॉब्लम है। तो हमारा न्यूरोटिक जब हम लोग हो जाते हैं ना, वो फियर के कारण ही तो होते हैं ना, कि हमें क्या है कि हमारे हैंड्स आर कैरिंग जर्म्स। कोविड के आने के बाद ना लोगों में ये वाला जो ओसीडी का जो है ना, बार बार वॉशिंग द हैंड्स बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि उनको लगता था कि एक भी कीटाणु नहीं रहना चाहिए। अरे भैया, एक कीटाणु मतलब जो ये बैक्टीरियाज हैं या वायरसेस हैं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर देम ऑल्सो। आपको पता है, अगर वायरसेस ना होना इस दुनिया में, हम लोग नहीं हो सकते हैं। जरूरी है हमारे ह्यूमन बीइंग के और हायर लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बैक्टीरियाज एंड वायरसेस, ये हमारे लिए जरूरी है। इट्स जस्ट दैट कि बहुत ज्यादा मात्रा में जब हो जाते हैं, तब हमारी बॉडी को हेल्प की जरूरत होती है उनको फाइट करने के लिए, यही है। लेकिन इट्स रिक्वायर्ड whatever we see and we feel in this universe ना, each and everything has got its significance, right? तो हम लोगों को अपने फियर्स से निकलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा ना, कोई न्यूरोसिस कर बैठेंगे। और कोई भी न्यूरोटिक चीज, मतलब ये वाली चीज, न्यूरोटिक चीज, अगर ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पाइल अप होता रहेगा ना, तो वो साइकोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। साइकोसिस का मतलब होता है कि आप उस टाइम आपको नहीं पता होता। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि मतलब बहुत ही मूवीज में भी मैंने ये सुना है कि पागल हमेशा ये कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। तो आई एम नॉट यूजिंग दैट वर्ड हियर। वो वाली चीज को मैं बोलना चाहती हूँ कि साइकोसिस का मतलब होता है जब उस इंसान को पता ही ना हो कि उसको क्या प्रॉब्लम है। He is not aware of what he is going through. That is psychosis. So neurosis can get converted into psychosis because of the fear. So we have to cut our fear then and there. वहीं पर अपने fear को cut करो। तरीके हमें बता रखे हैं डॉक्टर मर्फी ने और रोंडा बर्न ने। डॉक्टर मर्फी ने कितनी खूबसूरत बात कही ना, कि ग्रैटिट्यूड फील करके हम उस फियर से लिमिट अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। लिफ्ट में जाने से डर लगता है, लिफ्ट के लिए थैंक यू बोलो। आपको पानी से डर लगता है, पानी के लिए थैंक यू करो। उसके आगे जाओ, उसको प्यार से देखो, उसको फील करो, तभी ना वो फियर हमारी लाइफ से जाएगा, है ना? तो या मैम 10th पॉइंट।
You can overcome abnormal fear when you know the power of your subconscious mind can change conditions and bring to pass the cherished desires of your heart. Give your immediate attention and devotion to your desire, which is the opposite of your fear. This is the love that casts out fear. 11th, if you're afraid of failure, give attention to success. If you're afraid of sickness, dwell on your perfect health. If you're afraid of an accident, dwell on the guidance and protection of God. If you're afraid of death, dwell on eternal life. God is life, and that is your life now. 12th, the great law of substitution is the answer to fear. Whatever you fear has its solution in the form of your desire. If you're sick, you desire health. If you're in the prison of fear, you desire freedom. Expect the good. Mentally concentrate on the good and know that your subconscious mind answers you always. It never fails. 13th, the things you fear do not really exist except as thoughts in your mind. Thoughts are creative. This is why Job said, the thing I feared has come upon me. Think good and good follows. 14th, look at your fears, hold them up to the light of reason, learn to laugh at your fears. That is the best medicine. 15th, nothing can disturb you but your own thought. The suggestions, statements, or threats of other persons have no power. The power is within you, and when your thoughts are focused on that which is good, then God's power is with your thoughts of good. There is only one creative power, and it moves as harmony. There are no divisions of corals in it. Its source is love. This is why God's power is with your thoughts of good. Yeah, thank you so much, Ritu ma'am. You read it so beautifully. And by this, we conclude our chapter of fears right now. And इसके बारे में जितने भी affirmations है ना, हम लोग उनको करके जिस भी चीज का fear है ना, हम लोग उसको classify करके उस fear पे काम करके we will definitely get rid of that. और आपको मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हंस दो अपने fear पे कि क्या मतलब तू बच्चा है क्या इस चीज से डरती है या डरता है, उस चीज को मजाक के तौर पे लो ना, तो मजाक के तौर पे लेके हंसी हंसी में वो हो जाएगा. कई बार मुझे याद है कि जब मुझे डर लगता है ना, अंधेरे से डर लगता था, तो क्या होता था ना, मुझे लगता था कि मतलब मैं ना अंधेरे में बोलते बोलते जाती थी, ये मुझे पता है ना, ये हो रहा है, ये हो रहा है. मतलब आई यूज्ड टू से माय मॉम कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, मुझे पता होता था वो क्या कर रही है, लेकिन ये बेसिक वो होता है ना कि आपके अंदर से आ जाती है चीज कि आपको लगता है कि कोई है आपके साथ, मतलब समवन इज देयर विद यू. आप ये सोचो उस टाइम पे कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज देयर विद यू, irrespective of the fact that you are alone in this whole world. अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी जगह पे आप अकेले जा रहे हो, आपके साथ कोई और नहीं है, तो आपका पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड तो है, आप उससे कितने ही काम करवा लो, है ना. तो इस तरह से ये चैप्टर इतनी खूबसूरती से यहाँ पर डॉक्टर मर्फी ने इसको कंक्लूड किया है. हम लोग ऑब्वियसली हमें जो भी फियर होगा, हम लोग चैप्टर में वापस जाके हम अपने फियर्स के समझ, मेन चीज क्या है कि फियर के ऊपर सब्स्टिट्यूट करो जो पॉजिटिव थॉट है, उसको ऑपोजिट करना है. फियर हमें लिमिट करने की कोशिश करेगा, हमारा एमिगडाला, हमने उसको ऑपोजिट करना है अपने कंफर्ट जोन से निकलकर, है ना. So thank you so much everyone for this, for listening to me so patiently. I have to work on this. I always, overshot the time. So इसलिए मुझे like I'm sorry for that. वो affirmations वगैरह करने से ना तो कई बार तो थोड़ा सा ज्यादा हो ही गया. So yeah, and thank you so much Ritu ma'am and Neetu ma'am for reading so beautifully. Thank you so much each and everyone for being here with us. And since like Ritu Khanna wants to share something. Ritu, are you here in the session? Yeah, good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, Ritu. Hanji Ritu, over to you now. Actually, आज friendship day है. Oh. अच्छा, first happy friendship day सभी को. Yes. तो अगस्त का जो फर्स्ट संडे है उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है
ये फ्रेंडशिप हाँ डे। ये तो है। तो एज यूजुअल मैंने कुछ अलग तरीका निकाला है सबको विश करने का आज के लिए भी। शुड आई शेयर मैम? Obviously you should, you must. वो पूछते हैं मुझसे मेरे दोस्त कितने हैं। वो पूछते हैं मुझसे मेरे दोस्त कितने हैं। इस जहां की हर शय से मेरी दोस्ती है। यही तो मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया था। इस प्रकृति की ताकत को बताया था। खुले आसमां के नीचे बाहें फैलाकर खड़े होना। खुले आसमां के नीचे बाहें फैलाकर खड़े होना। चांद की रोशनी में छत पर बेफिक्र होकर सोना। चांद से बातें करना। तारों के झुंड में सप्तऋषि मंडल को पहचानना। अंधियारी और उजियारी रातों में फर्क को पहचानना। चांद की गति के हिसाब से उनकी दिशा और दशा के हिसाब से जानना रात्रि के हर प्रहर को। चांद के आसपास के छोटे और बड़े घेरों को चांद के आसपास के छोटे और बड़े घेरों के आकार व चमक के हिसाब से जानना आने वाले अपने समय को। अमृत वेला की बेला में तारों का रास्ता बनना। उस पर सज धजकर तारों के रथ पर सवार होकर भगवान जी का निकलना। कई बार वो धीरे से मेरी मम्मी मेरे कानों में बोलती थी, रितु उठ जा, देख तारों ने रास्ता बना लिया है। मेरे कानों में मिश्री घोलती थी। प्रकृति में मेरा पहला दोस्त बना चांद, जिससे मैं करती थी खूब सारी बात। दूसरा दोस्त वो बड़ा सा नीला नभ, जो सुनता था मेरी चाहते सब। तीसरे दोस्त बने वो बादल, छोटे बड़े काले सफेद भूरे घने, जो आते ही थे मेरी सारी इच्छाएं सुनने। मम्मी ने सिखाया था सुबह सवेरे उठते ही मंत्र पढ़ना, हाथों को अपने चूमना, फिर पहला कदम धरती माँ के सीने पर रखने से पहले उनको दोनों हाथों से छूना व नमन करना। पेड़ पौधों को देखकर मुस्कुराना और करना उनका अभिवादन। मुनि तो देते हैं हमें सुंदर सांसें, शुद्ध खाना, ठंडी पवन। खाना बनाने से पहले, गैस जलाने से पहले करना प्रणाम अग्नि को। उस पर बनाएंगे हम खाना, सब मिलकर खाएंगे खाना वो। जमीन पर आलती पालती मारकर बैठते थे हम सब एक साथ। खाना खाना हो या यूं ही करनी हो कोई भी बात, वो सुख जो मिलता था जमीन पर बैठने में, वो मजा आता ही नहीं महंगे फर्नीचर पर भी बैठने में। सुबह की सूरज की थोड़ी थोड़ी रोशनी से जब मेरी नींद खुलती थी, तो मम्मी सूर्य देव को प्रणाम करती हुई दिखती थी। सूरज को देखकर वक्त का लगाना अनुमान, उसकी किरणों के ताप से आने वाले मौसम का माँ को हो जाता था ज्ञान। बारिश से गहरी दोस्ती आज भी है बरकरार। मेरे बहुत ज्यादा खुश या उदास होने पर साथ देने को रहती है वो तैयार। इंद्रधनुष को देखते ही आज भी मैं बच्चों जैसे ताली बजाती हूँ, जोर जोर से कूद कूद कर खूब शोर मचाती हूँ। पानी से सबसे ज्यादा दोस्ती की, नहाने के नाम पर घंटों बातें करती थी। फिर जिंदगी की उलझनों में ऐसी उलझी कि अपने इन दोस्तों से दिल खोलकर बातें करना ही भूल गई। दीप्ति मैम ने बार बार यह कहकर याद दिलाया, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस यूनिवर्स को अपना दोस्त बना लो, यह याद दिलवाया। और मुझे आज मित्रता दिवस के मौके पर अपने सभी ये दोस्त याद आ गए। वो किस्से, वो बचपन के मीठे मधुर हिस्से याद आ गए, जब मैं कहती थी अपनी सहेलियों से कि मेरे दोस्त हैं ये चांद तारे सूरज हवा बारिश बादल। वो सब पकड़ते थे सिर अपना और कहते थे मुझे पागल। वो पागलपंतियां ही अच्छी थी, वो पागलपंतियां ही अच्छी थी। कुदरत तो कम से कम मेरी भावनाओं को खूब अच्छे से समझती थी। पंछियों के सुर कानों को कितने सुरीले लगते थे। बारिश आने वाली है ये हम चींटियों, कीड़ों मकोड़ों की चाल से पता करते थे। चलो अच्छा हुआ बहुत, दिल से चेहरे पर मुस्कान आई। नदियों से चंचलता ने ली धड़कनों में अंगड़ाई। हवा के साथ गीत गाकर मिला सांसों को भी चैन। सर्दियों में आग पर तपे हुए दूध को पीते पीते आग पर हाथ सेकने की याद आ गई हर रैन। जोर से कहनी अपनी बात गगन से, बागवानी करते हुए करनी बातें फूलों कलियों पत्तों से। गुड़ाई करते वक्त मिट्टी में सने हुए हाथ अच्छे लगते थे। धरती पर बरखा की पहली बौछार की सोंधी सोंधी महक से पाँव अपने आप ही थिरकते थे।
कहते हैं ना, जितना हो दोस्त पुराना, समझता है वो आपके जज्बात, निभाता है याराना। दीप्ति मैम, ओ मेरी प्यारी प्यारी दीप्ति मैम, इस ब्रह्मांड से जो दोस्ती का रिश्ता दिला दिया है आपने यार, इस बेशकीमती नियामत को याद दिलाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद 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 धन्यवाद। दैट्स इट मैम। So Amazing, beautiful. Vidya. So nice. Beautiful. Ritu. 5 elements को थैंक यू भी हो गया। 5 बहुत elements तो तुम्हारे दोस्त बहुत ही हैं ज्यादा शुरू से। सुंदर। ब्यूटीफुल, स्टाउंडिंग, रियली। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग रितु, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। Nice. बहुत प्यारा था Beautiful, Ritu. बहुत मस्त था। थैंक यू बहुत सो प्यारा। मच। Thank you, Priya. पूनम, हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। पूनम का बर्थडे है मैम आज, तो पूनम का बर्थडे हम लोग पूनम आपके लिए हम लोग गाना गाना चाहते हैं। उससे पहले आप कुछ बोलना चाहते हैं पूनम? नहीं मैम, बस मेरे को एक छोटी सी शेयरिंग करनी है। यू रिमेम्बर, मैंने कुछ दिन पहले अपनी एक पोइट्री भेजी थी जो ऑफिस में हमारे सेल्फ लव पे हुआ था, तो आई गॉट फर्स्ट बिल्कुल। प्राइज फॉर दैट। वाह, दैट्स वाह, सुपर वाह। क्यूट, बहुत अच्छा था, बहुत बहुत प्यारी तो पोएम मतलब थी। सबको थैंक यू लगा सो कि मच। बहुत दिल से लिखी गई थी और उसमें कोई चीटिंग नहीं थी। मतलब लोगों ने चैट जीपीटी और इधर उधर से थोड़े सोर्सेज निकाल के, बिकॉज हम लोग पोएट नहीं है तो ऑफिस में सडनली बोला कि सेल्फ लव पे लिखो। दैट डे वाज सेल्फ लव डे शायद, तो उसका सेलिब्रेशन था, तो आई गॉट फर्स्ट प्राइज। Wow, wow, So sweet. congratulations. Very, Thank very you, sweet. thank And you it so was much. actually very cute. The poem was actually, it was feeling that आपने बिल्कुल हार्ट से, बिल्कुल दिल से लिखा हुआ था. Thank you so much एग्जैक्टली जो for जब sharing that रोज with होता us. है ना, वही सब कुछ थोड़ा सा मैंने बस कोशिश की कि उसको थोड़ा रिदम में लिख दें, दैट्स इट। बिल्कुल, बिल्कुल, Resend बहुत it, please, खूबसूरत। again. हाँ, उसको अच्छा, I resend you would कर like to देना. read it again, है ना? Yeah, yeah. Okay, so let's wish her a happy birthday, ma'am. सभी को Happy सारे birthday, हम happy Happy birthday. birthday, happy Poonam. birthday Happy to birthday, you. Poonam Happy ji. birthday Thank you to so you. much. Happy Happy birthday, birthday. dear. Happy Happy birthday to you. birthday, dear to Poonam. Poonam. Happy birthday Happy to birthday you. to you. तुम जियो हजारों साल, Thank- साल के दिनों 50,000, सही बोला ना श्याम जी? Thank you so Yes, much. श्याम जी Thanks एक गाना गा everyone. दीजिए. Please, Sunday गाना. please, yes. श्याम जी को अब मुश्किल में डाल दिया हम लोगों ने। नहीं, मुश्किल नहीं होता, जो गाते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है. सर हैं आप? कौन सा गाना मैम आप बताइए? कोई भी Any जो song. आपको पसंद हो आप वही गा पूनम दो। आप बता जो दो, तुमको हो बाबा पसंद का वही birthday है बात ना? करेंगे. अरे हाँ, this is also a चलो मैं nice यही song. गा देता हूँ मैम। हाँ, Yes, this is nice बिल्कुल. song. जो Very nice. तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। ठीक है मैम? Wow. Very nice. Thank you so much. Thank 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 you you. so much. Thank you. पूनम, जो Thank gifts you, तुमको thank you पसंद so हो, much. वो सारे गिफ्ट्स तुम्हें मिले, ठीक है? आज जो भी गिफ्ट्स मुझे तुम्हें मिल रहा है, पसंद हो, जो कल भी तुम से ना चाहते हो, मेरा सारे बर्थडे गिफ्ट मिले। सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। And what a day for birthday. It's a friendship day also. So it's a Yeah. great day. Also, That's Happy amazing. friendship day to everyone here. yes, thank you, same to you all. Happy Friendship Day all. Happy Yeah, friendship we are day all to all, we are yeah. all for family. such a वो Yes. poem wonderful resend poem. कर देना. बहुत ही अच्छी हाँ? पोएम सुनाई ऋतु ने. लव यू ऋतु. हाँ, हाँ, ऋतु और ऋतु जी पूनम दोनों बहुत के अच्छा दोनों लिखा आपने। अपने पोएम्स जो है ग्रुप में भेज देना प्लीज, है ना? हाँ, मैं Yes. दोबारा से Okay भेज दूंगी guys, वापस so से। let's log off Thank you, now Priya. with the Okay, beautiful Thank you, Priya. song so of much. Thank you, Ritu, thank you, Ritu. so Sunday much with to the each and birthday. every one of you. And share Thanks the to birthday Deepti Thank you, ma'am, of Priya. course, for giving me this privilege. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank Okay, you. have a Bye. brilliant Priya. day. Thank Have a you. brilliant Thank you, Sunday. thank you. Celebrate yourself. Okay, thank you, sir. Thank you so Yeah. much. Thank you so much, Priya. Thank you. Thanks everyone. Thanks. Thank you. Lots of love.